Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and stay at home, stay safe. Today we are going to do the thermodynamics chapter and the topic is enthalpy. Enthalpy start करेंगे आज हम. What is enthalpy? As you all know, enthalpy is the internal energy change. Enthalpy को क्या बोलते हैं? Internal energy change बोलते हैं. It is heat absorbed or evolved at constant pressure. It is the heat absorbed or evolved at constant pressure. Enthalpy change of the system is equal to the heat absorbed or evolved at constant pressure. As you all know, Q is equal to delta U, internal energy change, plus P delta V. If we are taking constant volume means what is V is equal to 0. Constant volume means delta V 0. वो कैसे? अगर हमारा कोई वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, V1 से V2 नो चेंज होगा, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0. The whole term will become 0 and QV is equal to delta U. तो हमारे पास QV किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U के बराबर हो जाएगा. If the process is carried out at constant pressure, अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट होता है तो हमारे पास W वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? माइनस पी डेल्टा वी. किसके बराबर होता है? माइनस पी डेल्टा वी. एंड इक्वेशन 1 नाउ देन बिकम P डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस W. तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W इसके बराबर आ जाता है. वही अगर आपने W की वैल्यू पुट कर दी तो फिर से वही इक्वेशन बन जाएगी. Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. डेल्टा U किसके बराबर है? इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी मीन्स टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 एंड डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1. So Q will become now equal to U2 minus U1 plus P delta V की जगह क्या आ जाएगा? V2 plus V1. V2 हमारे पास क्या आ जाएगा? V2 minus V1. I will change here. My mistake. I write here plus, but here it should be minus. V2 minus V1. What will happen next? U2 plus PV2. U2 plus PV2 ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस आ जाएगा U1 plus PV2 PV1 U1 plus PV1 as H is equal to U plus PV. H किसके बराबर है? U plus PV के. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q will become equal to U2 plus PV2 is equal to H2. U1 plus PV1 is equal to H1. So H2 minus H1 it become now equal to delta H. QP किसके बराबर आ जाएगा हमारा? डेल्टा H. QP P का मतलब है यहाँ पे at constant pressure. Enthalpy change of the system is equal to the heat absorbed or evolved delta H that is by the system at constant pressure P. ठीक है? और डेल्टा H हमारा क्या है? U डेल्टा U plus P डेल्टा V. डेल्टा U plus P delta. Next is relationship between the heat of the reaction at constant pressure and at constant volume. As you all know, QP is equal to delta H, QV is equal to delta U. ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डेल्टा H is equal to delta U plus P delta V. डेल्टा H किसके बराबर आ गया हमारा? डेल्टा U plus P delta V. Delta H is equal to delta U plus P V2 minus P V1. Obviously P delta V is the change in the internal energy volume. Sorry, change in the volume. तो P V2 minus P V1. आप सबको पता है according to the ideal gas equation PV is equal to nRT. If PV1 that becomes equal to N1 RT. PV2 it becomes equal to N2 RT. दोबारा से करेंगे एक बार. QP is equal to delta H, QV is equal to delta U, and delta H now becomes equal to delta U plus P delta V. Delta H is equal to delta U plus इसको भी U2 minus U1 लिख सकते हैं. तो ऐसे ही delta V को भी V2 minus V1 हमने लिख दिया. तो PV is equal to nRT, PV1 is equal to N1 RT, PV2 is equal to N2 RT. Put the value here. तो क्या आ जाएगा? delta H is equal to delta U plus
N2RT माइनस N1RT, RT कॉमन निकल आएगा। देखेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, डेल्टा U प्लस N2RT माइनस N1RT, RT कॉमन निकल आया हमारे पास, N2 माइनस N1। अब N2 माइनस N1 क्या है? N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा। नंबर ऑफ मोल्स में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आ गया, दैट इज इक्वल टू Ng, ठीक है, RT। अब H किसके बराबर है? QP के, ये देखिए यहाँ पे, और U किसके बराबर है? QV के। तो QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा Ng RT, ये हमारे दो इक्वेशंस बन गई। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, कंडीशंस अंडर विच QP इज इक्वल टू QV और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U कब होगा? जब ये चीज जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आराम से इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हम इनको कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अगर हमारा वॉल्यूम, जैसे कि अगर हम ये वाली इक्वेशन ले लें, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये भी इसी के साथ की है, इसी को तो हमने डेल्टा Ng RT लिखा है। तो हम कहेंगे जब चेंज इन वॉल्यूम बिकम जीरो, मतलब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो उस समय डेल्टा V हमारा क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये पूरी टर्म जीरो होगी, तो डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U आ जाएगा ना, बड़े आराम से आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, when the reaction is carried out in a closed vessel so that the volume remains constant, वॉल्यूम क्या हो जाता है? कांस्टेंट। डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा V जीरो है तो डेल्टा H इसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा U के बराबर आ जाएगा। इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड, लिक्विड और सॉल्यूशन, अगर रिएक्शन कोई भी सॉलिड, लिक्विड और सॉल्यूशन को क्या कर रही है? इन्वॉल्व कर रही है, बट नो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई भी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं है, तो उस समय वॉल्यूम चेंज होगा। आप बताओ, क्या किसी सॉलिड, लिक्विड या सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होता है? नहीं। तो इट मींस अगेन डेल्टा V becomes equal to zero and delta H is equal to delta U. Third point is when the number of moles of gaseous reactant is equal to the number of moles of the gaseous product, that is number of moles of the product N2, number of moles of the reactant N1, दोनों इक्वल है, तो डेल्टा Ng क्या आ गया? जीरो आ गया। डेल्टा Ng जीरो आ गया तो फिर से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U या QP इज इक्वल टू QV, कुछ भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो फैक्टर्स हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से क्या करने हैं? लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। The heat of combustion of benzene in bomb calorimeter was found to be 3263.9 kilojoule per mole. It means what is this? Internal energy delta U at 25 degree C means temperature 25 degree थी, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 273 उसके अंदर, तो हमारे पास आ जाता है 298 केल्विन। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या निकालना है हमें? डेल्टा H निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? पहले उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए, हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस Ng RT। तो यहाँ पे Ng तो हमें पता ही नहीं है, R हमें पता है 8.314, T भी पता है, U भी पता है। डेल्टा N निकालने के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे कंबस्शन ऑफ बेंजीन की। कंबस्शन ऑफ बेंजीन मींस 2C6H6 प्लस 15O2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस 3 वाटर। इसमें हमने क्या किया? इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। तो हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट जो है हम उनको काउंट करेंगे। सिर्फ हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट है ऑक्सीजन और गैसियस प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या किया? 6 माइनस 15/2 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? -3/2। -3/2 हमने यहाँ डेल्टा Ng में पुट कर दिया। वैल्यूज पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज -3267.6 किलोजूल पर मोल। I will repeat it again. What will happen? Combustion of benzene. बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। उसमें जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लिया हमने बेटा। बैलेंस करने के बाद हमारे पास 15/2 O2 गैसियस में आ गया, 6 CO2 गैसियस में आ गया। डेल्टा Ng निकाल लेंगे, दैट इट कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थे 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट थे 15/2, तो हमारे पास क्या आ गया? -3/2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे -3/2। जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी -3/2 तो हमने यहाँ R की भी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे 1000 क्यों लिखा है? 1000 मैंने इसलिए लिखा है, ये जूल्स में था और ये किलो जूल्स में था।
मैंने इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो किलो जूल्स में मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया, 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 करके, तो ये किलो जूल्स में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास नेट आंसर कम्स आउट टू बी -3267.6 किलो जूल पर मोल। Next numerical is, if water vapor is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change at 1 bar, 1 bar क्या है, प्रेशर, and 100 डिग्री C, 100 डिग्री C क्या है हमारा, टेम्परेचर T दैट इज, तो T हमारा क्या हो गया 100 डिग्री C, इसमें हम क्या प्लस कर देंगे 273 और हमारे पास आ जाता है 373 केल्विन, इज 41 किलो जूल पर मोल। क्या है ये 41, एंथैल्पी चेंज, मतलब हमारा क्या है डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है 41 किलो जूल पर मोल। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है हमने, वेरी सिंपल। तो क्या है, वाटर को किस में कन्वर्ट किया है, लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्रोडक्ट साइड में, ये लिक्विड है ये 0 रहेगा, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर, एनपी हमारा 1 है, ये हमारा 0 है लिक्विड होने की वजह से, तो हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एन जी आर टी, 41 आ गया माइनस 1 आ गया, 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 373, हमारे पास आंसर आ गया सॉल्व करके 37.90 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड केस, 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस। जब 1 मोल ऑफ वाटर है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। 1 मोल ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, कुछ भी नहीं है, 0 है ये भी, इसको ना हम इसको कुछ ले सकते हैं। तो डेल्टा एच इस केस में क्या है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के ही नहीं है ना, तो डेल्टा एच किसके बराबर है, क्योंकि ये 0 है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये कितना आ गया 41 किलो जूल्स पर मोल। तो इस तरह से आप बाकी के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे घर पे। ओके बेटा, सभी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।